Today we are going to discuss about very important part of our body, that is human eye. I am going to explain you about structure of human eye. कि ह्यूमन आई जो बाहर से दिखती है बहुत ही सिंपल, ओके, एंड वी कांट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट इट. That today you will understand that how complicated it is. So first of all, we will draw the structure. Some kind of spherical structure, right? And this front out bulging part we call it cornea, right? That is cornea. So फ्रंट पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया. ओके, तो कॉर्निया के बाद हमारे पास यहां पे एक लेंस है, ऐसे क्रिस्टलाइन लेंस, राइट? एंड दैट लेंस इज अटैच्ड टू द वायर्स, टू द मसल्स. इस तरीके से यहां पे मसल्स हैं रेड कलर की. दीज मसल्स आर सिलरी मसल्स, right? That is ciliary muscle, and this is crystalline lens. Okay, yeah. Ciliary muscles are holding the lens in its position. अपनी पोजीशन में रखते हैं लेंस को. उसके अलावा ciliary muscle के अलावा हमारे पास एक और फिगर है, that is present here. This is black color, dark black color, which I am showing you. That is iris, right? और iris के साथ जो in between space है, ये बच गया जो space, this one, that is pupil. Okay, that is called pupil. And at the back side, here we have the screen. That is called retina. Okay, then we have this called optic nerve, which connected to the brain, with the help of which brain interprets that what kind of image is formed here and then send the message. Okay, and we have specific liquid present here. Here is a liquid present between cornea and pupil, that is called aqueous humor. One by one I will explain. And here we have another liquid present, right? That we call vitreous humor. This is the internal structure. Now apart from this, we have a specific and a different kind of layer present there, that is known as sclera, right? Outside layer. इस तरीके की dark layer है. I am drawing with blue color. Sclera, right? Now what sclera do? What is the function of sclera? It is the outermost covering of the eye. Fibrous tissue से बनी है, and it protects the vital internal parts of the eye, right? Then after this, इसके अलावा भी हमारे पास एक और लेयर होती है यहाँ पे, इसके अंदर रेड कलर की जो मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे. This line you can identify. This is known as choroid, right? ये स्क्लेरा के अंदर होती है लेयर. स्क्लेरा के अंदर भी एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं choroid, and that dark grey color की होती है ये, right? Attached to sclera, it is richly supplied with blood vessels. Blood vessels बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, right? And it darkens the eye from inside and hence prevent any internal reflection. अंदर से बिल्कुल darken करके रखती है आई को ताकि internal reflection ना हो पाए. Okay, तो one by one we are going to discuss the function of these parts. First is, you can say sclera. We are starting from the outward, right? So I am writing just points for that so that you can note it down later. So first is the outermost covering. This is the
outermost covering. ओके, सबसे बाहर वाली कवरिंग को हम स्क्लेरा बोलते हैं. मेड अप ऑफ white fibrous tissue, made up of white fibrous tissue. Okay, white fibrous tissue से बनी होती है. And it protect the vital internal part of eye from external injury. We can mention protects from internal injury. So that is about sclera. Okay, then next we have choroid. Okay, now for choroid we can mention it is dark gray pigment layer, dark gray pigment layer, dark gray color की होती है, right, and richly supplied with blood vessels, richly supplied with blood vessels. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा कवर करके रखती है आई को ताकि इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो पाए, इंटरनल रिफ्लेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, राइट, डार्कन द आई करती है एंड प्रोटेक्ट एन इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रोटेक्ट्स एनी इंटरनल रिफ्लेक्शन. Okay, so these are the first two components. Then we are going to move further. Third को हम यहाँ लिख लेते हैं. Third is cornea. This one, cornea. तो cornea जो होती है, the sclera layer continues in the front of the eye as cornea. तो sclera layer ही है जो continue करती है और उसको हम cornea बोलते हैं, अंदर तक जब पहुंच जाती है आइस के साथ. Right? It is a transparent white portion of eye. Transparent white portion of eye. Okay, and bulges outward. Bulges outward. You can see the shape. तो इसका मीनिंग है कि bulges outward. थोड़ा बाहर की तरफ झुकी हुई होती है, बाहर की तरफ टर्न हुई होती है, right? And transparent on the surface of eyeball. और इसका फंक्शन क्या है? It allows light to enter. Light to enter in eyeball. और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम आईबॉल बोलते हैं कि आईबॉल के अंदर ये अलाउ करती है कि लाइट को एंटर करने के लिए. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव रेटिना. Retina कहाँ पे है? You can see at the back, right? Innermost delicate membrane, having very important thing, innermost delicate membrane. Delicate भी होती है ये. अगर ये इसको डिस्टर्बेंस हो जाए तो इमेज नहीं बनती. We will not be able to see the object. Innermost delicate membrane. And इसके अलावा इसके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं that are called large cells. Having उन cells को हम क्या बोलते हैं? rods and cones. Having large number of cells, rods and cones. Dear children, these rods and cones are very important because the cones are sensitive to bright light, right? Cone, they are sensitive to bright light, sensitive to bright light. Okay, and what about cones? Rods are sensitive to dim light, sensitive to dim light, very important. Okay, right? So what is the meaning of this sensitive to dim light? Sensitive to dim light means if a person will have less number of rod cells. रोड सेल्स अगर कम हो जाएंगे तो उस पर्सन को कम लाइट में दिखना बंद हो जाएगा. He will be suffering from a disease, right? जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं. Okay, then after this we have number 5,
iris and pupil. So you can see on the screen, behind the cornea there is iris. This is iris. Okay. Now in between जो space है iris के अंदर उसको हम बोलते हैं pupil. तो pupil डिसाइड करता है कि कितना लाइट अंदर जाएगा कितना नहीं जाएगा. ओके, pupil की साइज पे डिपेंड करता है. And iris control the size of the pupil. Iris control the size of the pupil. Suppose if it's coming closer to each other, that means it needs less light. तो ऑटोमेटिक है ये ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर अपने आप ऑटोमेटिक वर्क करती है कि जैसे ही हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, देयर इज अ डार्क. ओके, तो कुछ देर के लिए हमें कुछ भी नजर नहीं आता. एंड आफ्टर 2-3 मिनट्स वी आर एबल टू सी और विजुअलाइज द पर्सन. आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे सीट्स है, यहाँ पे बंदा बैठा है नहीं बैठा. ओके, सेम वे व्हेन वी कम आउट आफ्टर वॉचिंग अ मूवी, वी फील लॉट ऑफ लाइट इन द आई, ग्लेयर इन द आई. व्हाई? बिकॉज इनसाइड वी वर सिटिंग इन अ डिम लाइट. तो उस टाइम जो आइरिस का साइज है वो बढ़ जाता है. दैट मीन्स आइरिस का साइज बढ़ जाता है. आइरिस का साइज बढ़ेगा तो दैट मीन्स मोर लाइट कैन एंटर बिकॉज आईज नीड मोर लाइट. तो आइरिस अपना साइज इंक्रीज कर देता है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग. व्हेन वी कम आउट तो आइरिस को मैसेज नहीं मिलता तब तक कि वी हैव टू डिक्रीज द साइज. तो इमीडिएटली जो बड़ा साइज होता है आइरिस का उसी में लाइट एंटर करती है तो हमें ग्लेयर पड़ती है. एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वी जस्ट नॉर्मल बिकॉज आइरिस ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है अपने साइज को. So that is a very important function for iris. Okay, तो iris को हम बोल सकते हैं जो कलर होता है आई का वो भी iris ही डिसाइड करता है. Iris lends the color of eye. Black color of eye. Black, brown, blue, grey. ये जो different colors होते हैं that is due to iris. ओके, बिकॉज इसमें पिगमेंट होता है जो हमारी आइज को कलर देता है. फाइन. एंड वेरी इंटरेस्टिंग, जब जो ये पिगमेंट होता है जब वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होता है पिगमेंट इस आइरिस के अंदर, व्हेन द पिगमेंट विल बी इन हाईएस्ट अमाउंट, देन इट विल बी द आइज का जो कलर होगा ब्लैक और ब्राउन होगा. लेकिन जब पिगमेंट कम होगा तो आइरिस का कलर ब्लू होगा. ओके, तो ब्लू कलर वाले बहुत कम होते हैं. You might have seen, but blue color means कि जो iris का जो पिगमेंट है उसमें बहुत कम है. That's why they are having the blue color eyes. जिनमें हाईएस्ट होगा उनमें ब्राउन और ब्लैक कलर होता है. ये याद रखना आपने. ओके, the iris has central circular aperture called the pupil. तो इसका फंक्शन ये होगा कि आइस कलर को डिसाइड करता है. And now you can see the pupil. Pupil क्या करता है कि allow the light कितनी कम एंटर करेगी या ज्यादा एंटर करेगी. रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय आइरिस. ओके, कैसे करता है वो? एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल. सो वी कैन मेंशन आइरिस कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट बाय एडजस्टिंग the size of pupil. राइट, pupil का जो साइज है उसको एडजस्ट करता है. वो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर डिम लाइट होगी तो आइरिस अपना साइज बढ़ा लेगा, गैप बढ़ जाएगा, pupil का साइज इंक्रीज हो जाएगा. ओके, एंड ऑटोमेटिकली मोर लाइट विल एंटर. व्हेन इट विल बी ब्राइटेस्ट देन आइरिस विल कम क्लोजर टुगेदर एंड देयर विल बी लेस स्पेस और pupil का साइज कम हो जाएगा एंड कम लाइट ही एंटर करेगी. Okay, now after this I have to erase this because board is full. Now the next part is crystalline lens. अब pupil के बाद हमारे पास क्या है? crystalline lens. crystalline lens. crystalline lens आपको दिख ही रहा है यहाँ पे. This is the lens. Okay, it is the crystalline double convex lens होता है. This is double convex lens. Okay, that is double convex lens behind the iris. Okay, and it has in the position कौन position में hold करके रखता है? By ciliary muscles. You can see ciliary muscles का function भी इसी में ही आ गया कि ciliary muscles क्या करती हैं कि they hold the lens in the position. Okay,
चलिए तो नेक्स्ट हम डिस्कस ही कर लेते हैं सिलरी मसल्स को. नेक्स्ट इज आर सिलरी मसल्स. Now what is there in ciliary muscles? Let's see. In ciliary muscles we know that first of all hold the islands in its position. Islands को उसकी पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं. ओके. एंड जो फोकल लेंथ होती है वो भी चेंज हो सकती है इसकी हेल्प से. फोकल लेंथ of islands can be changed by this. Okay, कि डिस्टेंस पास में है कि दूर में है. What I mean to say कि बेटा when we are sitting and watching a closer object, like मैं अभी बोर्ड को देख रहा हूँ and the moment I look at back तो वो दूर बॉल है, मेरी नजर उस पर भी जाती है. तो that means ये जो एडजस्टमेंट है इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, राइट. तो that is done by the सिलरी मसल्स. तो सिलरी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. देन वी हैव नेक्स्ट इज 8th वन इज ऑप्टिक नर्व. तो ऑप्टिक नर्व का मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि ऑप्टिक नर्व का क्या काम है. कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन, नियर अबाउट 1 मिलियन होती है इसके पास नर्व्स. कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन नर्व, राइट. नर्व फाइबर्स होते हैं जो हमारे रोड्स एंड कोन्स को रेटिना में कनेक्ट करते हैं. 1 मिलियन नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट रोड्स एंड कोन्स टू रेटिना. की जो इमेज बनेगी वो रोड्स एंड कोन्स की हेल्प से ही बनेगी. तो उसको रेटिना से राइट कनेक्ट करता है. कोन्स ऑफ रेटिना टू फिर ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन के पास ही मैसेज आने लास्ट में और ब्रेन ने ही इंटरप्रेट कर दिया. ओके. एंड मेन इसका फिर फंक्शन क्या हुआ, जैसे कि इसने इमेज बनी तो उसका जो मैसेज है वो ब्रेन तक पहुंचाना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बनते हैं. कैसे बनते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स? कि जैसे ही मैसेज आया ऑप्टिकल मैसेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बना के ब्रेन तक ले जाते हैं. कैरी ऑप्टिकल मैसेज. ऑप्टिकल मैसेज मतलब लाइट वाले मैसेज होते हैं. ऑप्टिकल मैसेज कैरी ऑप्टिकल मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू ब्रेन. तो ये ब्रेन तक लेके जाता है हमारे सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को. ओके. देन व्हाट इज लेफ्ट? वी आर लेफ्ट विद रेटिना एंड देन aqueous humor and vitreous humor. So what are these aqueous humor and vitreous humor? We are going to discuss one by one. पहले आ गया हमारा vitreous humor. सबसे पहले आपको पता ही है कि जो vitreous humor है ये क्या है. Vitreous humor is the space between जो फिल होता है रेटिना और आइलेंस के बीच में जो लिक्विड है ये वाला, दैट इज vitreous humor. तो vitreous humor के लिए हम क्या कर सकते हैं? vitreous humor के लिए जो फ्लूइड है ये क्या करता है, हमेशा आइस को वेट रखता है. कीप्स द आई वेट रखेगा आइस को. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस इसके ये पानी के बना होता है. इट ऑक्युपाइज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आई, कंपोज्ड ऑफ वाटर. पानी होता है ज्यादातर इसमें एंड ऑक्युपाइड 2/3. देखिए कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइज 2/3 वॉल्यूम ऑफ आई, राइट. इतना वॉल्यूम वो ऑक्युपाई कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट वी हैव aqueous humor. We can see aqueous humor is present here between cornea and islets. Islets और cornea के बीच में जो लिक्विड होता है उसको हम aqueous humor बोलते हैं, राइट. तो जो लेंस और रेटिना के बीच में होता है दैट इज vitreous humor. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस?
तो ये सिंपली बिटवीन वी कैन से कॉर्निया एंड आई लेंस, राइट। और इसका मेन फंक्शन है कि वेटी सरफेस, मतलब वेटी बना के रखता है सरफेस को, ताकि स्मूथनिंग हो सके फंक्शनिंग में, बिकॉज ड्राइनेस ना हो वहां पे, उस चीज को ये कंट्रोल करता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ब्लाइंड स्पॉट, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट हमारे पास ये जहां पे ऑप्टिक नर्व जाती है, कंबाइन होती है, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा पॉइंट है बेटा जहां पे कोई भी इमेज हमें नजर नहीं आती। वेरी सिंपल, इफ यू कैन मार्क अ क्रॉस एंड द सर्कल, एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी गिवन है पेज पे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और उसको पास में लाते जाओ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो क्रॉस और डॉट दोनों आपको एक ही जगह पे नजर आएंगे, तो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। ओके, तो ब्लाइंड स्पॉट हमारा जहां पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना दोनों ज्वाइन होते हैं, यहां पे कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होते, नो सेंसरी सेल्स। नो सेंसरी सेल्स मीन्स ना रोड ना कोन, दैट मीन्स nobody will be there to sense. Okay, and no vision is possible. Due to this, कोई भी विजन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि इमेज नहीं बनती, राइट। So these are the points which I want to discuss out today. Let's revise in a 1 minute. So this is the structure of human eye. We started with the cornea and these all are the parts. We started with the sclera. Sclera is the outermost covering, right? Outermost covering है ये, और ये प्रोटेक्ट करती है आइज को। उसके बाद सेकंड जो है वो कोराइड है। कोराइड क्या करती है? पूरी तरह डार्क करके रखती है आइज के अराउंड, ताकि टोटल जो इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो पाए। ओके, एंड व्हेन ये जो कोराइड है आगे की तरफ आई के साथ इंदर में टच होती है, तो वो हमारी बन जाती है कोर्निया। ओके, तो कोर्निया हमारा क्या है? थोड़ा बल्जिस फॉर्म में है। बल्जिस मतलब आगे को बड़ा हुआ, यू कैन सी। ओके, एंड इट अलाउज द लाइट टू एंटर इन द आई। देन कोर्निया के बाद जब लाइट आईज के अंदर एंटर करेगी, देन इट विल गो टू द आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस और प्यूपिल क्या करते हैं? आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, जितनी लाइट का अमाउंट चाहिए हमें आइज के अंदर उसको रेगुलेट करके रखता है। एंड प्यूपिल क्या करता है? जस्ट अलाउ द लाइट टू एंटर इन द आई लेंस, राइट। देन वी हैव क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस है, इसको सिलरी मसल्स होल्ड करके रखते हैं, राइट, सिलरी मसल्स। इसके अलावा आई लेंस को होल्ड करने के अलावा ये लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको भी एडजस्ट करते हैं, राइट। देन वी हैव सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स का फंक्शन हो गया, लेंस हो गया। देन वी कम टू रेटिना। रेटिना एक स्क्रीन का काम करती है जहां पे इमेज बनती है। देन वी हैव ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के अंदर मिलियन ऑफ नर्व फाइबर्स हैं। इसका काम क्या है कि जो मैसेज है हमारा ऑप्टिकल मैसेज को इलेक्ट्रिक मैसेज में कन्वर्ट करके ब्रेन तक भेजना है। देन वी हैव ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है कि देयर आर नो सेंसरी सेल्स। जहां पे ऑप्टिक नर्व लीव करती है, आइज को कनेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। वहां पे कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होते, तो सेंसरी सेल्स ना होने की वजह से देयर इज नो इमेज, नो विजन प्रेजेंट देयर, नो नथिंग इज विजुअलाइज्ड एट दैट पॉइंट, राइट। देन वी हैव एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या करता है? वेटी सरफेस प्रोवाइड करता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन cornea and eye lens. And vitreous humor, it is present between retina and eye lens, right? So vitreous humor and aqueous humor, so they are different, और जो vitreous humor है 2/3 वॉल्यूम ऑफ आई को ऑक्यूपाई करके रखता है, right? So thank you so much. I hope this video is going to help you out to study and understand the structure of human eye. Have a great day.